सर देखिए, हमारे विद्यालय में बहुत सारी सुविधा हैं जो अभी इस ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पहुंचाई गई। जैसे कि हमारा स्कूल जो है वो एनसीएफ फ्रेम के हिसाब से अकॉर्डिंगली चलता है। हमारे वी हैव 3 branches. The main branch we have in a Kalinagar, Rimrao. This is our second branch where we are celebrating annual functions today. I will be very happy that my children are showing very good and enthusiasms to have rating their performances. And there is one more branch which is in Puran Sarai. That's a junior branch where the pre-primary section had been. कुछ अंतर लगता है, जैसे आपका मुख्य ब्रांच जो है शहरी इलाका में है और एक ग्रामीण इलाका में है, दोनों में अंतर कुछ लगता है? See, it is not about the differences, but the thing is that we have to more focus on this area because the students are belong to the rural area, so they might have facing a problem to making the same things understanding. But there is a no differences is the both of as usual to the main branch and to this branch, because my faculties which I have kept it here, they were very well trained, well educated and well qualified, and they were personally trained by me. So this is being a good not to have and stated to give in between that there will be much better this branch or that branch, because we all branches having move and progress to the accordingly. हाँ, रहने के लिए मानिए कि दूर दराज के जो छात्र हैं उनको रहने के लिए व्यवस्था है या कैसे वो आपके विद्यालय में आएंगे? बिल्कुल, we have a accommodation facility also. We have a hostel facility for the students, and with the hostel facilities, they have been more extra co-curriculum acts also being added in the hostel facility. They have a tuition system. If the child is interested in or some other different like different hobbies they have been belong to, so we have also keep a personal trainer also for train them. यहाँ जो शिक्षक हैं बाहरी शिक्षक रहते हैं या इलाके यानी लोकल शिक्षक रहते हैं? We have it like 30-70 we have a perform in that 70% and 30% ratio we have been mixing together to all keeping the faculties of this. तमाम विद्यालयों के अलावा अगर देखा जाए तो तमाम प्राइवेट विद्यालय है, उनके अलावा क्या ऐसा कुछ है आपके विद्यालय में कि लोग आपके विद्यालय में एडमिशन कराएं? सर देखिए, हमारे विद्यालय में बहुत सारी सुविधा हैं जो अभी इस ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पहुंचाई गई। जैसे कि हमारा स्कूल जो है वो एनसीएफ फ्रेम के हिसाब से अकॉर्डिंगली चलता है। वी वर facing all the confliction of NEP and NCF, whatever curriculum has done by the CBSE side, because this school is already, that is 10+2. We have a main branch there. So we will follow only the CBSE norms and regulations to run the school. Like co-curricular activity-based learning we have motivated the students to have perform in a different more platforms. Some of the students have been performing in a state and national level also. So we were not only looking to the academics, we were working and looking to the child overall growth and development here. पूरा परिचय दे दीजिए। My name is Sakshi Singh and I'm the principal of Kalinagar Rimrao Buxar main branch. सर, शिक्षा के साथ आपके स्कूल में संस्कार और अनुशासन पर स्कूल क्या फोकस करती है? जरूर देखिए, जैसे क्या है कि हमारे यहाँ शिक्षा के साथ साथ डिसिप्लिन हो गया, आपके एथिकेट्स हो गए, एथिक्स हो गए, रिस्पेक्ट हो गए, ये सारी चीज़ों पे हम लोग फोकस करते हैं। अभी जो हम एनुअल फंक्शन करा रहे हैं, एनुअल सेलिब्रेशन करा रहे हैं एनुअल डे का, इसके साथ साथ इसमें आपको फूड फेट मिलेगा, आपको साइंस एग्जीबिशन मिलेगा, इसमें आर्ट गैलरी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ कल्चरल इवेंट के साथ साथ हम लोग फ्रूट वॉक भी बच्चे लोगों का रखते हैं, फैंसी ड्रेसेस कंपटीशन। हर एक जितने भी फैंसी ड्रेसेस कंपटीशन आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग देखेंगे भी, उस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बहुत सारे बच्चे ने कैरेक्टर रोल प्ले किए हुए हैं। जैसे किसी बच्चे ने महात्मा गांधी का रोल प्ले किया हुआ है, फ्रीडम फाइटर्स के रोल प्ले किए हुए हैं, अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स के रोल प्ले किए हुए हैं। कुछ बच्चे मैंगो बने हैं, कुछ बच्चे एप्पल बने हैं। इस तरीके से सारी चीज़ों पर हम लोग फोकस करते हैं और साथ साथ बच्चे लोग पढ़ाई कराते हैं। सर, प्राइवेट स्कूल होने के नाते समाज के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां बनती है? देखिए, एज अ प्राइवेट स्कूल तो कंपेयर नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, लेकिन एज अ प्राइवेट स्कूल हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से स्कूल है, जैसा कि सर ने बताया बहुत लॉन्ग टर्म से ये स्कूल चल रहा है। लेकिन जब से चीज़ें डिजिटलाइज होते गई, डिजिटलाइज होने के बाद सारी चीज़ें कंप्यूटर बेस्ड हो गई हैं। हम लोग स्मार्ट क्लास की सुविधा प्रोवाइड कराते हैं स्कूल में, लाइब्रेरी की सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, ताकि जो अभी है हमारा स्कूल को अच्छे से एक डेवलप एरिया में, और मतलब ऐसे जरूरी नहीं कि ग्रामीण इलाके में ही, हमारा जो और भी ब्रांचेस है, टुमराव में है, पुरांसला में, हर एक जगह पर हमारी यही प्रयास रहती है अपना बेस्ट दें।
क्या आप मानते हैं कि अभी के दौर में शिक्षा व्यापार हो गया है? देखिए सर, ये जो लोग सोचते हैं कि शिक्षा एक व्यापार है, ये तो गलत सोचते हैं सर। क्योंकि देखिए, शिक्षा अगर किसी ने उस तरीके से अगर बिजनेस किया है, ठीक है, तो बिजनेस को रन करने के लिए सिर्फ एक लोगों की मदद नहीं चाहिए होती है। बिजनेस को रन करने के लिए एक पूरे कम्युनिटी को लगना पड़ता है, पूरे लोगों को लगना पड़ता है। स्कूल में भी डायरेक्टर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होते हैं, और उन स्टूडेंट्स के छोटे-छोटे एफर्ट्स भी लगते हैं। एक छोटे-छोटे, जैसे अगर अभी आज के जो प्रोग्राम है, अगर उस चीज़ की बात करें, तो एक छोटे से प्रोग्राम को रन करने के लिए बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो बच्चे के एफर्ट्स, टीचर्स के एफर्ट्स, प्रिंसिपल के एफर्ट्स, ये सारी चीज़ें मिलकर के एक प्रोग्राम बनता है। उसी तरीके से जब स्कूल रन होता है, तो स्कूल रन होने के साथ-साथ एक डायरेक्टर अपना काम करते हैं, एक प्रिंसिपल अपना काम करते हैं, बच्चे अपना काम करते हैं, टीचर्स अपना काम करते हैं, और सारे के एफर्ट्स से एक बेस्ट स्कूल्स बनते हैं। और गार्जियन और छात्र से क्या अपील करिए? गार्जियन और छात्र से, मैं गार्जियन से पर्सनली ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे गार्जियन जो भी हैं, बहुत अच्छे बच्चे कर रहे हैं, लेकिन अगर उन बच्चे में और भी ज़्यादा अगर डेवलपमेंट आप चाहते हैं, तो उनको शाम को इवनिंग के टाइम में 2 घंटे ज़रूर लेकर के बैठिए। ये चीज़ हम पेरेंट को भी बताते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं पेरेंट्स से, आप बच्चे को सिर्फ 2 घंटे, क्योंकि क्या होता है मैक्सिमम टाइम में जो पेरेंट्स होते हैं, वो हमें यही कहते हैं कि सर एक्चुअली क्या होता है कि हम उतना पढ़े लिखे नहीं हैं। तो हम उन्हें यही बताते हैं कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं और बच्चे को एक सीबीएसई मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इसी चीज़ के लिए पढ़ा रहे हैं कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं, वो चीज़ें हमारे बच्चे ना कर सकें। उसको सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए उन बच्चों को 2 घंटे के टाइम में साथ में आप लेकर के बैठिए, उनके होमवर्क कंप्लीट्स कराइए, उनके जो भी टीचिंग टास्क मिले हुए हैं, वो कंप्लीट कराइए और उस पे ध्यान दीजिए। पूरे परिचय दे दीजिए, जी, पूरा परिचय बता दीजिए। माई सेल्फ सत्यम शेख, प्रिंसिपल सेंट जॉन्स इंग्लिश कॉलेज, सॉरी करनाल। पूरे टीचर ने, हमारे प्रिंसिपल सर ने, सब उनके सहयोग से हमने बहुत मेहनत करके, हमारे छोटे बच्चे हैं सब, कई दिनों से कि उनकी मेहनत की तपस्या का परिणाम है सर, ये हमारा एनुअल फंक्शन हो रहा है सर। देखा जा रहा है कि यहाँ साइंस एग्जीबिशन मेला और फूड के लिए भी स्टॉल लगा हुआ है। जी इसको सर। लेकर के क्या सोचते हैं आप? सर आखिर विद्यालय में एक क्यों? क्रिएटिविटी ऐसा कि हर क्षेत्र में बच्चे यहाँ से आगे बढ़े, चाहे साइंस में हो, चाहे आर्ट में। आर्ट गैलरी हमारी लगी है, जो बच्चे आर्ट में इंटरेस्टेड है या उसमें उस कला को आगे निखारना चाहते हैं, तो हम हमारा विद्यालय उनको प्लेटफॉर्म देता है सर कि वो आगे बढ़े और जिस फील्ड में उनको इंटरेस्ट हो, वो आगे बढ़ के नाम रोशन करे देश का और अपने माँ बाप का सर। ये जो बच्चे के ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाके के जो गार्जियन होते हैं कहीं ना कहीं पिछड़े होते हैं, तो उन गार्जियन को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर बच्चों ये को? संदेश देना चाहेंगे कि इस परिवेश में हमारा विद्यालय सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है, तो उनको कम खर्च में एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं, जाके जो बच्चे आरा या बक्सर या दूर क्षेत्रों में नहीं जा सकते, उन्हें घर के पास में ऐसा विद्यालय मिला जो हायर स्टडी के लिए आगे वो हम लोग प्रिपेयर करते हैं उनको। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कृष्णा है, कृष्ण श्रीवास्तव। मैं एज ए बायो टीचर यहाँ 9th पढ़ाता हूँ सर। सेकेंडरी स्कूल करनावेपुर की जो ब्रांच है, उसका आज एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है, क्या कहिएगा? नहीं, ये 2002 में यहाँ पे हम लोग स्कूल खोले थे और तब से लेकर के आज तक ये दिनों पर दिन प्रगति की ओर है और बढ़ते कदम में है अभी। एनुअल फंक्शन एक एजुकेशन का पार्ट है, मतलब कि जो कल्चरल प्रोग्राम होता है एनुअल फंक्शन में। ग्रामीण इलाके में विद्यालय है, हाँ, इसका कुछ खट्टा मीठा अनुभव शेयर कीजिए। ग्रामीण इलाके में होने के चलते कुछ कमियां देखने को मिलती है। कमियां तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, अभी तक तो सारे कुछ पॉजिटिव है। और ये ग्रामीण इलाका में है, बच्चे थोड़ा सा वीक मिलते हैं यहाँ पे जी। लेकिन हम लोग अपने स्तर से सर्वांगीण विकास का कोशिश करते हैं कि सभी तरह का बच्चों में विकास हो, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में, कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम में, या सब में पार्टिसिपेट करे बच्चा और सब में उनका विकास हो, तब जा करके एक सार्थक स्कूल का निर्माण होता है। विद्यालय के द्वारा साइंस एग्जीबिशन मेला और देखे कि क्या फूड्स का भी हाँ, इसको लेकर के क्या सोच है आखिर आप? इसको हम लोग फन फेयर कहते हैं, ठीक है ना। फन फेयर में साइंस एग्जीबिशन और फूड वाला भी है और कल्चरल प्रोग्राम भी। इसको तीनों लेकर के यही मैं बता रहा था कि सर्वांगीण विकास। हाँ, सभी तरह का, ऐसा कुछ नहीं है बच्चा कि कोई साइंस में ज़्यादा नॉलेज होता है, किसी का आर्ट्स में नॉलेज ज़्यादा होता है, किसी का संस्कृत में ज़्यादा नॉलेज होता है, किसी का इंग्लिश में। तो हम लोग सभी कुछ का
टेस्ट लेते हैं और सभी तरह के बच्चों को बढ़ने का मौका देते हैं। कौन लड़का किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, हम लोग उसको प्रोत्साहन करते हैं और उस लाइन में उसको जाने देते हैं। हमारे यहाँ से अच्छे अच्छे अभी स्पोर्ट्स से भी बच्चे आए हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ स्पोर्ट्स से भी हमारे स्कूल का बच्चे पढ़ के लगभग शाहपुर में 24 साल हो गया, 24 साल कंप्लीट हो गया, क्योंकि जगह अलग अलग था। तो 24 साल यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हुआ और 24 साल में काफी बच्चे अच्छा किए और अनेक क्षेत्रों में वो लोग जाके काम करते। नए सत्र की शुरुआत हो रही है, नए सत्र में नामांकन को लेकर के कुछ ऑफर रखे हैं? एडमिशन अभी फ्री चल रहा है हम लोग के यहाँ और ये इसका टाइम है कब तक? हमें लगता है कि पूरे मार्च तक एडमिशन फ्री रहेगा। उसके बाद जो भी चार्ज होगा चार्ज के साथ। इलाके के जो गार्जियन हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिर कुछ ऐसा दिखता है आपको कि वो भी कुछ अपने स्तर से सुधार करे या बच्चों का कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे इस ग्रामीण इलाके के गार्जियन? मेरा एक ही संदेश होगा, इस स्कूल का एक ही संदेश होगा गार्जियन के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि पेरेंट्स कंटिन्यू बच्चों को भेजे। वो घर से अपने बच्चा को स्कूल तक पहुंचा देंगे, बस उसके बाद सारी जवाबदेही और जिम्मेवारी स्कूल के होगी और निश्चित रूप से वो लड़का अच्छा करेगा। ये मेरा गारंटी है, स्कूल की गारंटी है कि जो लड़का 100% अपना प्रेजेंटेशन देता है स्कूल में, वो निश्चित रूप से सफल होगा। आने वाले समय में बहुत बेहतर करेगा वो। परिचय दे दीजिए। मैं रमेश सिंह, सेंट जॉन सेकेंडरी स्कूल का डायरेक्टर।